Hello everyone, my name is Arshil Udani, and in the previous lecture we discussed about the load balancing concept and we did few of the numericals regarding that. And today this is the last lecture on pre-stress concrete, that is losses in pre-stress concrete. It is also very easy and a very short concept. So let's learn it quickly. In Krishnarajah book, the initial stress in pre-stress concrete undergoes a gradual reduction with time from the stage of transfer due to various causes. This is generally caused as a loss of pre-stress concrete. Basically, in the pre-stress concrete, there are generally two types of losses, that is pre-tensioning and post-tensioning. What happens in pre-tensioning is elastic due to deformation of concrete. The second one is relaxation of stress in steel. The third one is shrinkage in concrete. Fourth one is creep. And for the post tensioning, the losses are the four losses are same, but the first one will be only difference will be that no loss due to elastic deformation if all the wires are साइमल्टेनियसली टेंस्ड, मतलब सबके सब जो वायर्स एक साथ अगर टेंस किए रहेंगे तो उसमें कोई लॉस नहीं होगा. एंड इफ द वायर्स आर सक्सेसफुली टेंस देयर विल बी लॉस. ठीक है. द सेकेंड वन इज रिलैक्सेशन ऑफ स्ट्रेस इन स्टील. द थर्ड वन इज श्रिंकेज. द फोर्थ वन इज क्रीप इन कंक्रीट. एंड द एडिशनल दो आएंगे, वो है एक हो गया फ्रिक्शनल लॉस एंड एंकरेज स्लिप लॉस. ठीक है. तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो. So losses in pre-stress concrete basically means gradual reduction of force with respect to time. Very easy. The elastic deformation. Shrinkage क्या होता है? Shrinkage basically होता है volume change due to loss of moisture from the particular concrete member. And the creep is what is creep? Deformation under sustainable loading. ठीक है. Pre-tensioning और post-tensioning में pre-tensioning ज़्यादा prefer किया जाता है because of the less losses. As you can see, there are four losses here, and for the post-tensioning there are additional two losses, that is friction and anchorage slip. So all the losses which are mentioned are generally comes with a certain formulas and very easy formulas. So I'll upload the PDF in the description down below. You can just check that. You can just note it down, and and you can just remember it. Okay. So let's quickly begin. Elastic deformation in concrete. Elastic deformation in concrete. See, elastic deformation in concrete. If there is a beam with a tendon provided during the initial stage, after a period of time, here you can see that it has get the length after elastic shortening. तो थोड़ा सा जो बीम का साइज थोड़ा डिफॉर्म हो गया है, तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब वो होता है. तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या है? लॉस इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाय सिग्मा सी. एम क्या है? एम इज नथिंग बट मॉडुलर रेशियो एंड सिग्मा सी इज स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट एट स्टील लेवल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज. स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट एट स्टील लेवल. Stress in concrete at steel level. What do you mean by the stress in concrete at steel level? अभी मान लो एक बीम है, ठीक है. सपोज देयर इज अ बीम एंड these are the steel members provided. तो अगर इसका स्ट्रेस डायग्राम बनाएंगे हम ऐसे, इसका अगर स्ट्रेस डायग्राम बनाएंगे तो जहाँ पे स्टील का जो स्ट्रेस लेवल है, दैट इज जहाँ पे स्टील का जो स्ट्रेस लेवल है स्ट्रेस डायग्राम में, उसको हम स्ट्रेस सिग्मा सी बोलेंगे. और इसका एक फॉर्मूला क्या है? इसका सिंपल फॉर्मूला है P अपॉन ए प्लस PE वाई अपॉन आई. और हमेशा E और Y हमेशा सेम रहेगा फॉर दिस. E और Y हमेशा सेम रहेगा. नोट इट डाउन. E और Y हमेशा सेम रहेगा. ठीक है. अगर E का वैल्यू जीरो रहेगा तो P मतलब फिर एक साइड पूरा जीरो हो जाएगा, P अपॉन ए लेंगे. ठीक है. तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या हो गया? मॉड्यूलर रेशियो इनटू सिग्मा सी. एंड मॉड्यूलर रेशियो क्या होता है? मॉड्यूलर रेशियो मतलब सिग्मा. मॉड्यूलर रेशियो मतलब स्ट्रेन ऑफ स्टील अपॉन स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट. ठीक है. तो दिस वाज द फॉर्मूला फॉर इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट. द सेकंड वन इज रिलैक्सेशन ऑफ स्टील. ठीक है. तो रिलैक्सेशन ऑफ स्टील क्या होता है कि अभी मान लो कि टुडे अगर स्टील की वैल्यू 1500 MPa है, बट आफ्टर 10 years वो 1300 MPa हो जाएगी ड्यू टू इट्स ओन due to its own self properties. There will be reduction in strength of the steel. So that is relaxation of steel. The formula is generally like that कि losses of steel is equal to percentage of relaxation
or you can call it as percentage of creep. If percentage of creep divided by 100 multiply by initial PO का मतलब होता है इनिशियल स्ट्रेस, और इनिशियल स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। और इनिशियल स्ट्रेस क्या होएगा, तो इनिशियल स्ट्रेस होएगा इनिशियल फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्टील, करेक्ट। The third loss is generally loss due to creep in concrete, loss due to creep in concrete। अभी due to creep in concrete आया, तो there are generally two formulas। the first formula will be applied when the strain is given, मतलब जब strain दिया हुआ रहेगा सिग्मा, ये strain दिया हुआ रहेगा तब हम ultimate creep method यूज करेंगे, जिसका फॉर्मूला है loss is equal to sigma EC, strain at creep multiply by stress at steel at concrete section multiply by modulus of steel. So loss is equal to sigma CC multiply by EC multiply by ES, and if the creep coefficient is given, then the formula will be loss is equal to coefficient multiply by modular ratio multiply by sigma C. Okay, so this was loss due to creep in concrete। The third one is loss due to shrinkage। loss due to shrinkage क्या होएगा, loss due to shrinkage का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा ई एस मल्टीप्लाई बाई ई इंटू एस, और ये इसका जो फॉर्मूला है और इसका जो वैल्यू है इज जनरली for pre-tensioning it is 3 into 10 power minus 6, and for post-tensioning it is 2 into 10 power minus 6। if it is not given we have to remember it। ये हो गया प्री टेंशनिंग के लिए। द पोस्ट टेंशनिंग के लिए, अगर पोस्ट टेंशनिंग के लिए बाकी के चारों सेम है। द ओनली डिफरेंस विल बी इन फ्रिक्शनल लॉसेस। उसके लिए द फॉर्मूला इज इनिशियल स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय फ्रिक्शन कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय एंगल ऑफ इंक्लिनेशन प्लस वेव इफेक्ट कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय स्पैन। तो which is equal to PO is equal to mu into alpha plus K into X। X का मतलब होता है span in meters। And the last one is anchorage slip। anchorage slip का फॉर्मूला होता है डेल्टा मल्टीप्लाई बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील अपॉन लेंथ। और ये डेल्टा का फॉर्मूला इज जनरली आया कैसे, मैं बताता हूँ आपको। डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है, पीएल चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, पीएल अपॉन ए ई, करेक्ट। if we separate PA and LE, P upon A is generally stress, correct। तो ये stress हो गया, stress into length upon E, और जो stress होता है वो losses in stress हो गया। तो we will just interchange the values, we will get the values as stress losses in stress is equal to change in length multiply by ES upon L। And lastly it is asked to calculate, and mostly it is asked to calculate the percentage loss। percentage loss क्या होगा कि total loss, ठीक है, टोटल लॉस ऑफ द पर्टिकुलर टोटल लॉस, मतलब फॉर एग्जांपल फ्रिक्शनल लॉस, परसेंटेज लॉस फॉर फ्रिक्शन पूछा तो फ्रिक्शनल लॉस अपॉन इनिशियल स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो दिस वर द फॉर्मूलाज generally noted down। okay, let's quickly see the few numericals regarding that, very easy numericals, very easy numericals। so let's quickly jump into it। so I'll just one question was asked in May 2015 is that in a pre-stressed concrete beam 200 mm wide 300 mm deep with 6 meter span, ठीक है, इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग फोर्स दिया हुआ है 400 किलोन्यूटन, इनिशियल दिया हुआ है प्री स्ट्रेसिंग फोर्स 400 किलोन्यूटन इज अप्लाइड एट इसेंट्रिसिटी ई दी हुई है 70 mm, ठीक है, बाई टेंडेंस हैविंग एरिया ऑफ 400 mm। तो एरिया में ही प्री स्ट्रेसिंग फोर्स दी हुई है तो हमें इनिशियल स्ट्रेस मिल जाएगी। assuming ES is equal to 2 into 10, मतलब modulus of elasticity, modulus of steel 2 into 10 power 5, and modulus of concrete is 0.333 10 power 5 MPa। Anchorage slip is 1.5 mm। Creep coefficient in concrete is 1। Concrete shrinkage is 0.0002। Creep loss in steel is 3%। Find the losses of stress due to elastic shortening, ठीक है, losses ड्यू टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन। सेकेंड इज losses ड्यू टू एंकरेज स्लिप। द थर्ड इज losses of ड्यू टू creep in concrete। द फोर्थ इज loss ड्यू टू concrete shrinkage। फिफ्थ इज loss of stress due to creep in steel। तो creep in steel is generally relaxation in steel। and the total loss of stress in tendons, ठीक है। तो let's quickly see।
सो ये डेटा दिया हुआ है कि बी 200, डी 300, एल 6 मीटर, इनिशियल स्ट्रेस इज 400 किलो न्यूटन। तो इनिशियल स्ट्रेस क्या होएगा 410 पावर 3 मल्टीप्लाइंग बाय द एरिया ऑफ स्टील दैट इज 400, तो विल गेट द वैल्यू एज 100 मेगा पास्कल। आई टोल्ड कि ई और वाई हमेशा सेम होने चाहिए होंगे, मतलब ई को हमें वाई लेना है तो 70 mm और एरिया तो बाकी के वैल्यूज एज इट इज फ्रॉम द क्वेश्चन। The first step is to calculate the modular ratio, that is modulus of elasticity of steel upon modulus of elasticity of concrete, that is a modular ratio. So 2 into 10 power 5 upon 0.333 10 power 5 will get the value of 6 megapascal. 6 sorry mega units नहीं आएगा, कट जाएंगे। The second one is stress in concrete at steel level. P upon A plus PE upon Y. So we'll get the value of 410 power 3. Or area will be area of section, that is 200 into 10 power 3. The and E similarly P is equal to 410 power 3 multiplied by 70 into 70. ठीक है, और I will be 210 power PD cube by 12. Okay, so we'll get the value of E sigma C is equal to 11.02. The losses due to elastic deformation, अभी we'll calculate the losses. तो first वाला रहेगा losses due to elastic deformation. The first the loss is equal to m into sigma c. तो m calculate किया और sigma c calculate किया है, तो m है हमारा 6 और sigma c 11.2, तो we'll get the value of 66 1.33 मेगा पास्कल। ठीक है, तो अभी इसका परसेंटेज लॉस निकालना रहेगा, तो कैसे रहेगा, तो परसेंटेज लॉस विल बी दैट इज 66.133 अपॉन इनिशियल स्ट्रेस जो हम लोग ने कैलकुलेट किया दैट इज 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 विल गेट द वैल्यू ऑफ 6.61%। ठीक है, ये हो गया एक एक के लिए। अभी बाकी चारों के लिए भी कैलकुलेट करना है, तो विल कैलकुलेट लॉस ड्यू टू एंकरेज स्लिप। एंकरेज स्लिप का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा एल मल्टीप्लाई बाय ई एस अपॉन एल। तो डेल्टा एल हमें 1.5 दिया हुआ है, ई एस इज 2 into 10 power 5 और लेंथ है 6000 mm, तो विल गेट द वैल्यू ऑफ 50। सिमिलरली हम लोग इसका परसेंटेज लॉस निकाल लेंगे, दैट इज 50 अपॉन 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 विल गेट द वैल्यू ऑफ 5%। द थर्ड वन इज लॉसेस ड्यू टू क्रीप इन कंक्रीट। अभी इसमें हमें कोएफिशिएंट दिया हुआ था इफ यू रिमेंबर, तो कोएफिशिएंट विल बी 1, तो हम कोएफिशिएंट मेथड यूज करेंगे, दैट इज कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय m इनटू सिग्मा c। तो m हो गया 6 और सिग्मा c इज 11.02, तो विल गेट द वैल्यू ऑफ 66.12%। तो इसका भी परसेंटेज लॉस निकाल लेंगे गाइस। तो परसेंटेज लॉस कैसे रहेगा, 66.12% अपॉन 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 विल गेट द वैल्यू ऑफ 6.61। एंड द फोर्थ वन इज ड्यू टू श्रिंकेज। ड्यू टू श्रिंकेज कैसे निकालेंगे हम लोग, सिग्मा ई सी एस मल्टीप्लाई बाय ई एस। तो गिवन क्वेश्चन में क्या है 0.002 मल्टीप्लाई बाय 2 into 10 power 5 विल गेट द वैल्यू ऑफ 40 एम्पियर। Similarly, we'll calculate the losses, that is 40 upon 1000 into 100, so we'll get percentage loss as 4%. The fifth one is creep in steel, that is relaxation. तो रिलैक्सेशन का क्या रहेगा, परसेंटेज लॉस अपॉन 1000 मल्टीप्लाई बाय इनिशियल स्ट्रेस, मल्टीप्लाई बाय इनिशियल स्ट्रेस। तो परसेंटेज क्रीप 3 दिया हुआ है अपॉन 100 और जो इनिशियल स्ट्रेस है वो 1000 है गाइस, तो हमें इसका मिलेगा 30 एम्पियर। तो सिमिलरली विल कैलकुलेट द परसेंटेज लॉस एज 3%। अभी हम लोग को जितना स्ट्रेसेस दिया हुआ है, जितना लॉसेस दिए हुए हैं, हम लोग ने वो कैलकुलेट कर लिए और उनकी अकॉर्डिंगली परसेंटेज लॉस निकाल ली। और लास्ट में क्या पूछा हुआ है, टोटल लॉस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, टोटल सबको दैट इज ये 6.61, फिर ये 5, फिर ये 6.61, ये 4 और ये 3 को ऐड करेंगे, तो विल गेट द वैल्यू ऑफ टोटल, दैट इज 25.22% ऑफ टोटल परसेंटेज लॉस। तो जो पूछा गया था 6 मार्क के लिए, वेरी इजी क्वेश्चंस गाइस। जो पूछा गया था खाली मल्टीप्लिकेशन और छोटे 4-5 फॉर्मूला याद करना है कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए, बस जस्ट समझ के ले लो कि ये फॉर्मूलाज है, 4-5 फॉर्मूलाज है, याद कर लो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अभी हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से, बहुत ईजी हमसे। ये देखिए 12 मार्क के लिए पूछा गया। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है, अ प्रीस्टेज कंक्रीट बीम 230 mm by 450 mm is प्रीस्टेज with wires of area having 300 mm square located at constant eccentricity of 50 mm and carrying an initial stress guys of 1200 newton per mm square। initial stress दिया हुआ है, the span of the beam is 10 meter, the length दी हुई है 10 meters, calculate the percentage loss in stress if the beam is pre-tensioned। ठीक है, 6 मार्क के लिए, and if it is post tension 6 मार्क के लिए।
अभी गाइस इसमें डेटा दिया हुआ है, दैट इज ईएस दिया हुआ है, ईसी दिया हुआ है, रिलैक्सेशन स्टील दिया हुआ है, इनिशियल स्ट्रेस ड्यूरिंग इनिशियल स्ट्रेस दिया हुआ है, श्रिंकेज इन कंक्रीट ड्यूरिंग प्री टेंशनिंग एंड ड्यूरिंग पोस्ट टेंशनिंग दिया हुआ है, क्रीप कोएफिशिएंट दिया हुआ है 1.6, तो हम कोएफिशिएंट मेथड यूज करेंगे। एंकरेज स्लिप 1 mm की दी हुई है, फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट वेव इफेक्ट दैट इज के इज 0.0015 पर मीटर। तो ठीक है, तो मैंने डेटा जैसे एज इट इज लिख दिया, इनिशियल स्ट्रेस पी ओ 1200 MPa लिख दिया, ठीक है। तो 1200 ले लिया, तो हम हमें पहले ये हमें पी ओ हमें दिया हुआ है 1200 MPa, तो हम स्ट्रेस निकाल लेंगे, दैट इज 1200 मल्टीप्लाई बाई 300, ठीक है। तो ये हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो हमें फोर्स दिया हुआ है, ठीक है। ये हमें सॉरी स्ट्रेस दिया हुआ है, हमें प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स निकालना है, दैट इज हम जो फॉर्मूला था उसको P अपॉन ए उसको हम रिवर्स कर देंगे, दैट इज 1200 इंटू एन पावर 3, 1200 मल्टीप्लाई बाय 300 एरिया विल गेट 360 किलो न्यूटन का प्री स्ट्रेसिंग फोर्स। तो फिर ES मिला हुआ है, EC है रिलैक्सेशन ऑफ 5%, क्वेश्चन में सब गिवन है। सिमिलरली क्वेश्चन में वही वापस हम पहले ये प्री टेंशनिंग के लिए निकालेंगे, तो पहले हम मॉड्यूलर रेशियो निकाल लेंगे, दैट इज 110 अपॉन 35, दैट इज 6। फिर हम सिग्मा सी निकाल लेंगे P अपॉन ए प्लस PE वाई अपॉन आई, तो E और Y सेम होएगा 15 to 50, और I is BD cube by 10 will get the value of 3.99 MPa. The formulas are same just like above. तो पहले हम ड्यू टू डिफॉर्मेशन निकालेंगे, दैट इज m इंटू सिग्मा सी विल गेट द वैल्यू ऑफ 29.34। फिर अकॉर्डिंगली उसका लॉस निकाल लेंगे, ड्यू टू रिलैक्सेशन निकालेंगे परसेंटेज स्टील अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय इनिशियल स्ट्रेस, तो विल गेट 60 MPa। तो और उसका परसेंटेज लॉस 5%। सिमिलरली ड्यू टू क्रीप में हम लोग फॉर्मूला डालेंगे सिग्मा सी मल्टीप्लाई बाय m इंटू कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय m इंटू सिग्मा सी, तो विल गेट द वैल्यू 30.308। फिर वही लॉस निकालेंगे 38.308 अपॉन इनिशियल स्ट्रेस अपॉन 100, तो विल गेट द वैल्यू ऑफ 3.192%। The loss due to shrinkage will be sigma ES into ES and will get the value of 63 MPa. So similarly the loss will be 5.25%। ये फॉर्मूला बेस्ड ही है, तो आप कैलकुलेट कर लेना, मैं इसलिए थोड़ा फटाफट करा रहा हूँ क्योंकि ये सब आप देख के भी समझ जाओगे। फिर उसके बाद जो टोटल परसेंटेज जो हम लोग ने टोटल कैलकुलेट किया है, ठीक है, that is for due to elastic deformation, that is 1.995, 3.192, 5.25, the total will be 15.432%। ये हो गया प्री टेंशनिंग के लिए। नाउ लेट्स गो फॉर पोस्ट टेंशनिंग। पोस्ट टेंशनिंग के लिए भी सेम ही है। पोस्ट टेंशनिंग में ये अज्यूम करते हैं कि ऑल द वायर्स आर stressed simultaneously, therefore there will be no loss, all wires are stressed simultaneously, therefore there will be no loss। द सेकेंड विल बी रिलैक्सेशन ऑफ स्टीम, सेम जो फॉर्मूला में जो प्रीवियसली हम लोग ने कैलकुलेट किया है, कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा गाइस। 12 मार्क का क्वेश्चन है, तो जो पहले लिखा था तो वापस लिख देना, खाली आंसर्स फटाफट लिख देना। फिर श्रिंकेज हम लोग ने निकाला, श्रिंकेज तो 3.5%, फिर क्रीप निकाला अकॉर्डिंगली। फिर अभी यहाँ पे हमें पोस्ट टेंशनिंग में दो आएंगे, दैट इज फ्रिक्शन और एंकरेज स्लिप। तो फ्रिक्शन के लिए क्या आएगा, P0 इज इक्वल टू म्यू इंटू अल्फा प्लस के इंटू एक्स। जहाँ पे अल्फा का वैल्यू हमें जीरो दिया हुआ है, तो हमें म्यू भी जीरो हो जाएगा, तो P0 इज इक्वल टू के इंटू एक्स, दैट इज 1200 प्लस 0.005 जो क्वेश्चन में गिवन है, और एक्स है 10 मीटर्स। तो 18 मेगापास्कल का हमें फ्रिक्शन लॉस मिला, उसका परसेंटेज लॉस है 1.5%। सिमिलरली एंकरेज स्लिप विल बी डेल्टा एस change in length into ES upon L, so that will be 21.21 megapascal। Similarly उसका percentage loss will be 1.75%। add up all the values, all the percentage losses will get the value of 14.94%। तो सी गाइस वेरी इजी सम्स, वेरी एक बार समझ गया तो फटाफट हो जाएगा। 12 मार्क डायरेक्ट, 12 मार्क के लिए सम आ रहा है। ऐसे सम्स प्री स्ट्रेसिंग का चैप्टर बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, ठीक है। फटाफट आपको मतलब बाकी बाकी सब चैप्टर के अकॉर्डिंगली प्री स्ट्रेस कंक्रीट इज रिगार्डिंग इजली इज वेरी इजी। सो आई डिसाइडेड टू अपलोड दिस चैप्टर फर्स्ट, ताकि मैक्सिमम बच्चे ये चैप्टर में से मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सके, ठीक है। सो आई होप दिस होल चैप्टर वाज हेल्पफुल टू यू गाइस। Do refer the notes, okay। I will be linking each and every notes of the respective video according to the respective video in the description down below। I hope you like this initiative of me educating you guys।
Please do share this video so that it will be beneficial for other students too. So thank you for watching guys. माँ बाप का ध्यान रखिए, सेफ रहिए, चलो बाय.